Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the rhombus and its properties. But before discussing the rhombus, one more type of parallelogram question is there on the board, which we cannot discuss yesterday. ठीक है, अगर आपने पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको एक टाइप की प्रॉब्लम और जो है वो एनकाउंटर हुई होगी. Such type of problem is written on the board that the first question is the perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. ठीक है, पैरेललोग्राम जो है उसका पेरीमीटर जो है वो कितना है 150 सेंटीमीटर है. फर्स्ट वी ड्रॉ द पैरेललोग्राम. दिस इज द पैरेललोग्राम एंड इट्स नेम इज CLLUE. This is a parallelogram. Now he is saying in the question it is said that the perimeter of the parallelogram perimeter of CLUE parallelogram is 150 centimeter. ठीक है. Now this is the according to the first statement. Now in the second statement he question said that one of its side is greater than the other side by 25 centimeter. एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है. So let one side of parallelogram is equal to x centimeter, then other side of parallelogram क्या हो जाएगी x plus 25 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है. अब हमें पता है पैरेललोग्राम के अंदर in the parallelogram क्या होता है CL साइड इज इक्वल टू UE साइड एंड LU साइड इज इक्वल टू EC साइड. राइट. पेरीमीटर क्या होता है जो आउटर बाउंड्री होती है. सो द पेरीमीटर इज इक्वल टू लेट ये x साइड है तो ये कितनी हो गई x प्लस 25 हो गई. पेरीमीटर अगर मैं इस पैरेललोग्राम का निकालूंगी तो वो क्या होगा CL प्लस LU प्लस UE प्लस EC ये होगा. अब CL जो है वो किसके इक्वल है UE के इक्वल है तो इट मींस इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ CL प्लस LU जो है वो किसके इक्वल है EC के इक्वल है तो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ EC. Taking 2 common we can write it as 2 times of CL plus EC. Right. अब CL जो है that is equal to x plus 25. पेरीमीटर मेरे को कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है. This is equal to 2 times of एक साइड क्या है x है दूसरी साइड क्या है x plus 25 है. On solving left hand side what we get is 2 times of 2x plus 25. ठीक है. सो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 25. ठीक है. दिस कम्स आउट टू बी 75 इज इक्वल टू 2x प्लस 25. 75 माइनस 25 is equal to 2x. Now what we got is 2x is equal to 50. X comes out to be 50 divided by 2. So one of the side comes out to be 25 centimeter. एक साइड जो है वो कितनी हो गई मेरे पास one side is equal to 25 centimeter and the other side, what is other side, that is what we assume is x plus 25 according to the question statement. So other side becomes 25 plus 25 is 50 centimeter. So now according to the statement अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पेरीमीटर क्या आएगा of this particular parallelogram is 150 centimeter. This is another type of question which we cannot discuss yesterday.
and some more questions are also present in which you have to prove, but the proving part is done already in the first video कि पैरेललोग्राम के जो प्रूफ्स हैं कि साइड्स जो है वो हमारी इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री का सम जो है वो फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें जो है, और डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, इन सब के प्रूफ जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर या पार्ट 1 के अंदर कवर हो चुके हैं. सो दैट पार्ट आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन. So today's topic is now the rhombus and its properties. Rhombus क्या होता है और उसकी properties क्या होती हैं. Now the topic is rhombus. What is rhombus? Rhombus is a parallelogram. Parallelogram ही होता है rhombus. Let me draw it first. This is a rhombus. A, B, C, D. Rhombus is a parallelogram. ठीक है, rhombus क्या है? Parallelogram means फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी पैरेललोग्राम वाली? दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मीन्स दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए. This is the very first property. Now, if I am talking about the second property, that is opposite angles are equal. That is angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. This is the second property of the parallelogram. Now, if I am talking about the third property of the parallelogram, which says that when we connect the opposite vertices, adjacent vertices को छोड़ के opposite vertices को हम आपस में connect करें, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को bisect करते हैं. जहां पर वो intersect कर रहे हैं, let that point is O. वो क्या है? O point है. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट इज AO is equal to OC and BO is equal to OD. This is the third property. But when we discuss the rhombus, जब हमने rhombus डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो उसमें क्या बताया था कि rhombus की जो adjacent sides होती हैं they are equal. It means adjacent side, fourth property is adjacent sides. यहां नहीं लिख सकती मैं. अगर मैं लिखूं रोम्बस प्रॉपर्टीज, ये तो थी मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज इसकी. अगर रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तीन प्रॉपर्टीज. अगर रोम्बस जो है वो मेरी पैरेललोग्राम है तो ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी. बट अब मैं बात करूं अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज की, रोम्बस प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, तो वो ये तीन पैरेललोग्राम वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी. साथ में क्या होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल. मीन्स ए बी इज इक्वल टू
बी सी। अगर ए बी बी सी के इक्वल हो गया तो क्या होगा, इट मीन्स क्या आएगा, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और ए बी मेरा सी डी के भी इक्वल था, और बी सी मेरा डी ए के भी इक्वल था। तो इट मीन्स चारों साइड्स जो आती हैं वो क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। नाउ द थ्योरम बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस के ऊपर रोम्बस की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है। दैट थ्योरम इज ऑन द बोर्ड नाउ। The theorem is the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. अभी तक क्या था, मैंने ये बताया कि रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है और उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट दिस इज द प्रॉपर्टी विद द रोम्बस दैट रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसको हम डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो, ए बी सी डी जो है दैट इज अ रोम्बस, वो क्या है, रोम्बस है। और हर एक रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल्स, जो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ए सी एंड बी डी जो है वो क्या है, डायगोनल्स हैं, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स हो गए किसके, रोम्बस के, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। जो मैं बोल रही हूँ ये सारी चीजें लिखनी है जब थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगी। ठीक है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, therefore diagonals AC and BD bisect each other, hence इसीलिए क्या होगा, OA जो है वो इक्वल होगा OC के, एंड OB इज इक्वल टू OD, बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मीन्स यहां पर हम बात करें तो रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये करेंगे। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कंसीडर किए, इन ट्राइंगल AOB, AOB मीन्स दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AOD, दो ट्राइंगल हमने ले लिए। OA जो है दैट इज इक्वल टू OA, वो होगा दोनों साइड में क्योंकि ये एक कॉमन साइड है। ठीक है, अब OB जो है वो इक्वल टू OD है, ये हमें यहां से मिल गया क्योंकि वो क्या है, यहां पे लिख दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई each other। ठीक है, दैट इज वाई OB इज इक्वल टू OD। अब बात आती है AB, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू AD। ये एडजेसेंट साइड है रोम्बस की तो इसीलिए इक्वल है, दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। हो गई, तीनों साइड इक्वल आ गई, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस इज द कॉमन साइड। ये क्या है, कॉमन साइड है। सो यूजिंग द SSS, यूजिंग ट्रिपल S, साइड 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 कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी, triangle AOB is congruent to triangle AOD। ट्राइंगल AOB जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल AOD के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट है तो इट मींस
एंगल ए, इसीलिए हेंस एंगल AOB शुड बी इक्वल टू एंगल AOD। ये किसका इक्वल होना चाहिए? एंगल AOD के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंगल AOB एंड एंगल AOD मींस इस एंगल की मैं बात करूं और इस एंगल की मैं बात करूं तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो इनका सम जो है एंगल AOB प्लस एंगल AOD is equal to 180 degree as both angles form linear pair। वो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल AOB AOD के इक्वल है तो इसको मैं लिख सकती हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD। यहां पर भी एंगल AOD लिख लो तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD becomes 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD and that comes out to be 180 degree. So angle AOD is equal to 180 degree divided by 2 ये आएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? एंगल AOD comes out to be 90 डिग्री। तो वहां से अगर मैं निकालूं एंगल AOB भी क्या आ जाएगा मेरे पास? 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, बट उनका बाइसेक्टिंग जो एंगल होता है, जिस एंगल पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट एंगल इज 90 डिग्री। वो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस डायगोनल्स and hence it is also known as the diagonal property of the rhombus। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज और ऑन द रोम्बस इज ऑन द बोर्ड नाउ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फाइंड x, y एंड z। ये रोम्बस दिया हुआ है। CERI इज द रोम्बस। CERI जो है वो क्या है? CERI इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस है, साथ में CERI जो है वो क्या है? एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो CERI इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। इट इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? जो ये पॉइंट है OE is equal to OI। OE जो है that is equal to x, so OI is given as 5, so x comes out to be 5 here। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, because CERI is a parallelogram also। Now the second part, y is equal to 12 as OR is equal to OC। OR जो है वो OC के इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, या रोम्बस में हमारे डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। सो ये OE जो है वो OI के इक्वल है, OC जो है वो OR के इक्वल है। नाउ अब CERI जो है वो रोम्बस है, इज अ रोम्बस। रोम्बस की क्या होती हैं? सारी साइड्स बराबर होती हैं। इट मींस CE is equal to ER is equal to RI and is equal to IC। ठीक है, अब ER जो है वो मेरे को कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, और RI या फिर IR देखो तो दैट इज गिवन एज Z। तो Z जो है दैट कम्स आउट टू बी 13। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y and Z when the figure given is a rhombus। Now if I am talking about the second question, what does it say? ABCD is a rhombus। ABCD एक rhombus है। ABCD is a rhombus। ठीक है, therefore ABCD is a, therefore रहने दो, ABCD is a parallelogram also। पैरेललोग्राम ऑल्सो। ठीक है,
पैरेललोग्राम है तो एंगल ABC मुझे दे रखा है, एंगल ABC जो है दैट इज गिवन एज 56 डिग्री। बट पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट इज एंगल ADC इज इक्वल टू 56 डिग्री। ये क्या आ गया मेरे पास, 56 डिग्री आ गया। अब एंगल ODC मीन्स दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल क्या होगा, डायगोनल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ एंगल ADC। इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 56 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 28 डिग्री। अब मेरे को एंगल कौन सा निकालना है, एंगल ACD। ये आ गया मेरे पास कितना है, 26 डिग्री है। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। सो मैं ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करूंगी, इन ट्रायंगल OCD ट्रायंगल लेंगे तो एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO और वी कैन DCO is equal to 180 degree. Now angle COD is given as 90 degree. Angle ODC what we get is 28 degree plus angle DCO is equal to 108 degree. Angle DCO is equal to 180 degree minus 118 degree. This comes, angle DCO comes out to be 62 डिग्री। एंगल DCO सेम एंगल है जो एंगल DCA है या ACD है। सो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCO, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम ही हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 62 डिग्री। ये एंगल जो आएगा, दिस एंगल कम आउट टू बी 62 degree. This is how we can solve the question. Now the next question is on the board now for the rhombus. Now the next question is on the board. One of the diagonals of a rhombus is equal to one of its sides. Find the angles of the rhombus. Let the rhombus is this is the rhombus PQRS. PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. अब वो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि एक डायगोनल जो है रोम्बस का वो उसकी साइड्स के बराबर है। लेट, तो क्या हो गया, रोम्बस है तो PQ इज इक्वल टू QR, QR इज इक्वल टू RS एंड RS इज इक्वल टू SP। ये सारी हो गई साइड्स, ये सारी साइड्स एक डायगोनल के इक्वल हैं। लेट दैट डायगोनल इज QS। QS जो है वो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। एंड दिस इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द, दिस इज द फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन क्या हो गई, सारी साइड्स जो है वो किसके इक्वल हो गई, एक डायगोनल QS के इक्वल हो गई। नाउ फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल PQS and triangle QRS, PQ is equal to RS as they are opposite sides or side of a rhombus. Opposite side भी लिख सकते हो, opposite side of rhombus, or they are the side of the rhombus, therefore they are equal. Now another thing is PS is equal to
QR यूजिंग द सेम रीजन, बट QS जो है वो साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तीनों साइड्स मेरी अगर क्या है, बराबर हैं, तो इट मींस दीज बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। सारी साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की वो इक्वल होती हैं। सो ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इट मींस उसका जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स भी हैं और हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स भी हैं। दिस पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 60 डिग्री के इक्वल आ गया और ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, कैसे आया, बोथ आर वर्टिकली, बोथ आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द रोम्बस। ऑपोजिट एंगल्स है रोम्बस के, और इक्विलेटरल ट्राइंगल PQS जो ट्राइंगल है और QRS जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनका एंगल भी है। तो ये एंगल जो आया, ये आया मेरे पास 60 डिग्री का। नाउ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ PQRS पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सो वी कैन राइट इट हियर एज PQRS पैरेललोग्राम। सो एंगल P जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Q बिकम्स 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। अब एंगल Q जो है that is equal to angle S as they are opposite angles, opposite angles of parallelogram, ठीक है। या पैरेललोग्राम नहीं कह सकते तो आप उसको रोम्बस भी कह सकते हो। सो एंगल S जो आएगा that also comes out to be 120 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, रोम्बस के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने थे। तो एंगल P और एंगल R जो आए हैं बोथ कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, both comes out to be 120 degree. This is how we can find the all the angles of a rhombus when one of the diagonal of a rhombus is equal to its side, then the angle formed is 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो एंगल जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री का। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। This is all about the rhombus and its properties. All the types of rhombus questions are already covered in this video. So from my side, topic of rhombus is over. In the next class, we are going to discuss the next special type of quadrilateral. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Please share this channel among your friends, among your relatives who are studying in the class and preparing for the foundation classes. Thank you for today.